Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are fit and fine. Welcome back again to online classes. Our today's lecture will be about chapter number 10 named as properties of matter. In today's lecture, discuss about elasticity, stress, strain, elastic limits, and Hooke's law. Chapter number 8 name is 10 name is properties of matter. Before going to define what is elasticity, first of all we will define what is matter. Matter is simply defined as anything which occupies space and having mass is called as a matter. The matter is commonly present in three different stages: solid, liquid, and in solid state it has definite shape and definite volume. In liquid it has no definite shape but definite volume. In gases it has no definite shape, no volume. This chapter number 10 will contains all those topics which related with the properties of matter, either they will be solids, liquids or gases. So elasticity is simply defined as the property of a body to regain its original shape, position after removal of applied force. इलास्टिसिटी मैटर की वो खासियत है, इलास्टिसिटी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिस बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में या ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर वापस आ जाए जैसे ही उस बॉडी के ऊपर में से हम अप्लाइड फोर्स ख़त्म करें. सेकंड डेफिनेशन, a body change its shape, volume when force is applied. When force is removed, it regains or rejoins or comes back to its original position. Such property of a body is called as elasticity. कि जब भी किसी बॉडी की शेप में, वॉल्यूम में फोर्स लगाने से चेंज आए और जैसे ही वो फोर्स उस बॉडी से हम रिमूव करें, ख़त्म करें, वो बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल शेप के ऊपर वापस आए. ऐसी प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे इलास्टिसिटी. फॉर एग्जांपल रबर एंड स्प्रिंग. तो रबर और स्प्रिंग, these both are the elastic materials. इलास्टिक मटेरियल्स क्या हैं? वो मटेरियल्स जिनके ऊपर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी हो. मतलब अगर हम रबर को एक्सटेंड करें, फोर्स अप्लाई करें, तो फोर्स अप्लाई करने से उसके अंदर एक्सटेंशन आती है और जैसे ही फोर्स खत्म करें वो अगेन वापस अपने सेम पोजीशन के ऊपर वापस आए, सेम शेप को रिजॉइन करे. ऐसे प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं. Term is deformation. Deformation is simply defined as when we apply the force if shape or size of body changed, it is called as a deformation. कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें, वो फोर्स उस बॉडी के साइज या उसके अंदर कोई चेंज लाए, कोई बिगाड़ लाए, ऐसे किस्म की बिगाड़ को हम नाम देंगे डिफॉर्मेशन. आफ्टर दैट वी हैव टॉपिक दैट इज स्ट्रेस. स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करेंगे? द डिफॉर्मेटिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस. कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें, वो फोर्स किसी मखसूस एरिया के ऊपर लगे
उसके बाद उस बॉडी के अंदर कोई भी चेंज आए, तो ऐसे फोर्स को हम नाम देंगे स्ट्रेस। मैथमेटिकली स्ट्रेस विल बी रिटन एज stress is equal to force upon area. The stress is denoted by Greek symbol sigma, where F is denoted, force is denoted by F, and area is denoted by I. Therefore, the stress will be equal to sigma is equal to F upon A. The SI unit of stress is Newton per meter square. Newton is SI unit of force. Meter square is SI unit of area. Therefore, the unit of stress will be Newton per meter square. Now, this stress force will be only valid on those objects, bodies, which possess the property of elasticity, such as spring or rubber. Then we have a strain, and strain is simply defined as the relative total deformation produced in a body is called strain. किसी भी बॉडी के अंदर जो बिगाड़ है, जो उसके अंदर चेंज आ जाए, उन चेंज को हम नाम देंगे स्ट्रेन। अभी वो चेंज कौन लाएगा? दैट विल बी स्ट्रेस। कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगे तो वो उस बॉडी के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस करवाता है। स्ट्रेन का मतलब है डिफॉर्मेशन, चेंज। अभी ये स्ट्रेन बॉडी के लेंथ में हो सकती है, बॉडी के शेप में हो सकती है, बॉडी के साइज में हो सकती है, या बॉडी के वॉल्यूम के अंदर। तो जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग आए, उस चेंजिंग को हम नाम देंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय ई। जैसे कि स्ट्रेन को समझने के लिए हम किसी भी बॉडी की लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं, तो स्ट्रेन का रेशो फाइंड करने के लिए हमेशा जो चेंज जिस प्रॉपर्टी के अंदर आए उसको उसके ओरिजिनल के साथ हम डिवाइड करेंगे, तो हमें रेशो आएगा स्ट्रेन का एस डेल्टा एल चेंज इन लेंथ अपॉन एल ओरिजिनल लेंथ। दैट विल बी द रेशो ऑफ स्ट्रेन इन एन ऑब्जेक्ट, लेकिन वो रेशो स्ट्रेन का उस ऑब्जेक्ट के लेंथ के लिए। अगेन द स्ट्रेन हैज नो यूनिट बिकॉज the strain is ratio of same quantities. चेंज इन लेंथ का यूनिट भी मीटर, जबकि ओरिजिनल लेंथ का यूनिट भी मीटर। तो इसलिए ये दोनों मीटर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो जो नेट रिजल्ट आएगा वो आएगा 0। तो फिजिक्स के अंदर सेम क्वांटिटीज के रेशो की यूनिट नहीं होती। इलास्टिक लिमिट, elastic limit is simply defined as material's elastic limit is the greatest stress that can be applied to it without causing plastic permanent deformation. इलास्टिक लिमिट्स हमारे पास वो लिमिटेशंस हैं, वो बाउंड्रीज हैं जहाँ तक किसी भी इलास्टिक मटेरियल के अंदर फोर्स अप्लाई करें और वो फोर्स को बर्दाश्त कर सके। जैसे कि अगर हम स्प्रिंग के ऊपर या रबर के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो उसके अंदर चेंज लाएगी और वो चेंज किसी लिमिट तक होगी। अगर हम उस लिमिट से उसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन आएगी, जिस ब्रेकडाउन को हम परमानेंट डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो इलास्टिक लिमिट वो बाउंड्रीज हैं जहां तक कोई भी इलास्टिक प्रॉपर्टी फोर्स को एक्सर्ट कर सके या बर्दाश्त कर सके। When a material is stressed to a point below its elastic limit, it will return to its original length once the stress is removed. अगर किसी भी मटेरियल के ऊपर हम जो स्ट्रेस अप्लाई करेंगे
वो इलास्टिक लिमिट के पॉइंट से कम हो, तब वो बॉडी अपने सेम पोजीशन को रिज्वाइन करती है, सेम पोजीशन पे वापस आ जाती है, सेम लेंथ के ऊपर वापस आ जाती है जब हम उसमें से स्ट्रेस को रिमूव करें. नाउ वी हैव एन इम्पॉर्टेंट लॉ नेम्ड एज अ हुक्स लॉ. द हुक was an English physicist. He discovered his law named as the Hooke's law in 1678. Now, according to Hooke's law, within an elastic limit, the extension produced in a body is directly proportional to the applied force. Hooke's law हमें ये बता रहा है कि किसी भी इलास्टिक लिमिट के ऊपर, किसी भी इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर किसी भी बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो उस बॉडी के अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस करवाएगी. एक्सटेंशन वर्ड की माना है टू इंक्रीज. अभी ये हुक्स लॉ जो होगा ये वो वैलिड होगा इलास्टिक मटेरियल्स के लिए. सेकंड डेफिनेशन, द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. स्ट्रेस वर्ड की माना है फोर्स, स्ट्रेन वर्ड की माना है एक्सटेंशन और चेंज और डिफॉर्मेशन. कि जितनी भी क्वांटिटी के अंदर आप किसी भी बॉडी के अंदर फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी क्वांटिटी के अंदर उस बॉडी के अंदर चेंज आएगी. तो हुक्स लॉ के लिए इलास्टिक लिमिट्स जरूरी हैं. मैथमेटिकली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन. फोर्स को डिनोट करते हैं एफ से और एक्सटेंशन को एक्स से. तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. हमेशा प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हम इक्वल और कांस्टेंट की साइन लेते हैं. तो यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हमने इक्वेशन इक्वल की साइन और कांस्टेंट के लिया, वेयर के इज अ कांस्टेंट और इसका नाम होगा स्प्रिंग कांस्टेंट. नाउ एज यू सी इन द डायग्राम कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग के ऊपर हम कोई भी फोर्स या कोई भी बॉडी या कोई भी मास अटैच कर रहे हैं. तो मास अटैच करने के बाद वो स्प्रिंग के ऊपर फोर्स जाहिर होगी, जिस फोर्स की वजह से स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आ रही है और इस एक्सटेंशन को हम जाहिर कर रहे हैं एक्स से. लेकिन जैसे ही उस फोर्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं वैसे ही उसके अंदर एक्सटेंशन भी बढ़ रही है. तो इलास्टिक लिमिट मीन्स कि उस स्प्रिंग के बाउंड्रीज तक जहां उसके अंदर ब्रेक डाउन ना आए उस पॉइंट तक जितना भी आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही उसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा. दैट वाज सिंपल स्टेटमेंट ऑफ हुक्स लॉ. उसके अलावा हुक्स लॉ की वैलिडेशंस सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक मटेरियल्स के ऊपर हैं. उसके अलावा हुक्स लॉ में जो हम कांस्टेंट के डिस्कस किया था वो कांस्टेंट के का जो वैल्यू होगा वो डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर. That will be all for today's lecture. You can understand.